सो बेटा तो बेटा आज जो हम मेनली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है आपके पास कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हम कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन के वेज इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है बेटा? कोड ऑप्टिमाइजेशन इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक फॉर द कोड। ठीक है, कोड को ऑप्टिमाइज करना, रिड्यूसिंग समथिंग इन इट, रिड्यूसिंग द मेमोरी, जो मेमोरी इंगेजिंग टाइम है फॉर द सीपीयू एज वेल एज द क्लॉक टाइम। ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज करना, ये हमारे पास क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन का मेन पर्पस है। ठीक है, so the optimization is a program transformation technique which tries to improve the code by making it consume less resources, either in terms of a CPU memory or in terms of a speed time. ठीक है, so in optimization, high level general programming constructs are replaced by very efficient लो लेवल प्रोग्रामिंग कोड्स। ठीक है, कोड्स को रिप्लेस किया जाता है हाई लेवल को लो लेवल से। ए कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस मस्ट फॉलो द थ्री रूल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर थ्री रूल्स कोड ऑप्टिमाइजेशन के। द आउटपुट कोड मस्ट नॉट इन एनी वे चेंज द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं होना चाहिए। should not increase the speed of the program, should increase the speed of a program and demand for the less number of the resources. ठीक है, optimization should be itself and fast, should not delay the overall compiling process. ठीक है, ये itself होनी चाहिए। ठीक है, this is not like a manual कि आप उसको क्या है रिप्लेस करोगे every time. ठीक है, it will understand the code, it will see that where a replacement is possible and it will replace it itself. ठीक है बेटा, so efforts for an optimized code can be made at various levels of compiling the process. At the beginning, users can change, rearrange the code or use better algorithms to write the code. ठीक है, ये क्या बिगिनिंग हाई लेवल लैंग्वेज के टर्म में हम बात कर रहे हैं कि बिगिनिंग में तो इस तरीके के चेंजेस किए जा सकते हैं टू ऑप्टिमाइज द कोड। आफ्टर जनरेटिंग द इंटरमीडिएट कोड, ठीक है, after generating the intermediate code, the compiler can modify the intermediate code by address calculation and improving the loops. ठीक है, loops and registers allocations को improve करके change करके we can optimize the code. ठीक है, हम कोड में optimization कर सकते हैं। ठीक है, while producing the target machine code, the compiler can make use of a memory hierarchy and CPU registers. ठीक है, so the code optimization is broadly categorized into the two main types: machine independent and machine dependent. ठीक है, ये हमारे पास क्या machine dependent and independent are the two major categorization classification है आपके पास code optimization को। So बेटा machine independent optimization, in this optimization the compiler takes the intermediate code and transforms a part of the code that does not involve any CPU registers or the absolute memory locations. ठीक है, so in this optimization the compiler takes in the intermediate code and transforms the part of the code that does not involve the CPU register and the absolute memory location. So ये मशीन इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं किए, सीपीयू इन्वॉल्व नहीं किया, तो ये मशीन इंडिपेंडेंट हो गया। मशीन में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक सी हाउ, so if this is a code, this code involves the repetitive assignments of identified by them, which should be put in this way.
Like see 10 times initialization to 10 is made, ठीक है, only one time initialization is made and it's in the loop, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, लूप में चेंजेस करके, ठीक है, कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। इस तरीके की ऑप्टिमाइजेशंस आप लोगों ने की भी है व्हेन यू वर स्टडीइंग द लैंग्वेजेस। आपने जब जावा की है, आपने जब सी की है, पाइथन की है, यू हैव सीन दैट यू हैव यूज्ड सच काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन फॉर द कोड। मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन इज डिफरेंट, ठीक है बेटा। मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन आपकी क्या है, डिफरेंट होती है, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन इज डन आफ्टर द टारगेट कोड हैज बीन जनरेटेड and when the code is transformed according to the target architecture, machine architecture, ठीक है। it involves CPUs, registers and a memory referencing, ठीक है। machine dependent optimizer put efforts to make a maximum advantage of the memory hierarchy, ठीक है। तो जो मशीन डिपेंडेंट कोड होता है वो क्या है, आपके पास मशीन लेवल लैंग्वेज के क्लोज होता है, और इसमें हमारे पास क्या है, द टारगेट कोड जो जनरेट हो रहा है वो मशीन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हो रहा है, सीपीयूज, रजिस्टर्स एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, जो कि मशीन इंडिपेंडेंट में इन्वॉल्व नहीं थी, वो सिर्फ कोडिंग लेवल पे था, ठीक है। सो लेट्स सी बेसिक ब्लॉक्स। So beta source code generally have a number of instructions which are always executed in a sequence and are considered as a basic block of the code. Okay. These basic blocks do not have any jump statements among them. Okay. When the first instruction is executed, all the instructions in the same basic blocks will be executed in their sequence of appearance. So इसमें क्या होता है बेटा, बेसिक ब्लॉक्स में क्या होता है, आपके पास ये हमने कुछ इस तरीके की चीज स्टडी की हुई थी। If you remember in the previous lectures, we have seen the blocks. वो ब्लॉक्स में क्या होता था बेटा, आपके पास एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखी है एंड इन द सीक्वेंस ओनली द प्रोग्राम्स विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जैसे आगे फर्दर फ्लो ग्राफ्स, डीएजीज बन रहे थे, वो ब्लॉक्स के ऊपर बन रहे थे, बेसिक ब्लॉक्स के ऊपर बन रहे थे। A program can have a various constructs of basic block like if then else, switch cases, do while, for, repeat, until, ये सब इसके वेज है। So the thing is that how to find a basic block in the program, for that algorithm can be used to find the basic block of a program. So these are the steps that has been mentioned to find the basic blocks. First, statement of a program, statement of the target or any branch, conditional or unconditional, statement that follows the branch statements, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा, उसका सीक्वेंस कैसे रहेगा, इंस्ट्रक्शंस को किस ऑर्डर में प्लेस करना है फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो फर्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है बेटा। स्टेटमेंट्स ऑफ द टारगेट, स्टेटमेंट ऑफ द program that follow the branch. Now these are actually the blocks, the source code and this is the block.
बिग कोड्स को बेटा एक साथ नहीं भेजा जा सकता, उनको बेसिक ब्लॉक्स में डिवाइड करना पड़ता है, सो डेटा रिसोर्सेज रजिस्टर्स कैन बी वेल यूज्ड। ठीक है, जस्ट सी दैट इट्स ओनली अ डिवीजन। कोड को, मेन कोड को हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं, चंक्स बना रहे हैं, यू कैन से। जस्ट देखो अच्छे तरीके से एक बार। So beta, we can see here the blocks that has been divided with a loop, जहाँ पे आपके पास क्या है ब्रेसेस स्टार्ट हो रहे थे, वहाँ पे इनको क्या ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। They play an important role in identifying the variables which are being used more than once in a single block. If any variable is being used more than once, the register memory allocated to the variable need not to be emptied unless the block finish execution. ठीक है? So next is control flow graphs. So basic blocks can be represented by using the control flow graphs. The control flow graph depicts how the program control is being passed among the blocks. ठीक है, कि control flow graph हमें ये बताता है कि किस तरीके से क्या है, what will be the steps of execution, the procedure of execution of the codes or the tokens. ठीक है. Now it also tells us on the basic blocks the flow graph, कि किस तरीके से कौन सा ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा, देन कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, विच ब्लॉक कैन गो इन पैरेलल, कि कौन सा ब्लॉक आपका क्या है पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकता है, ये वो भी बता रहे हैं। ठीक है, जस्ट प्रीवियस कोड के ऊपर से डिजाइन कर लो, डिजाइन करो इसे साथ में।
तो बेटा जो अभी हमने अब सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन देखी थी जो कि आपकी मशीन डिपेंडेंट थी, what you have seen out in there is that in machine independent it is actually we are performing optimization on the higher level code. ठीक है, so in that there is also loop optimization. Most of the program run as a loop in this system and it becomes necessary to optimize the loops in order to save the CPU cycles. Loops can be optimized by the following techniques: invariant code, induction analysis, strength reduction. ठीक है, इनको जस्ट नोट कर लीजिए: invariant code, induction analysis, strength reduction. So बेटा invariant code क्या होता है? हमारे पास एक fragment of a code that resides in the loop and computes the same value at each iteration. जैसा भी हमने ऊपर देखा equal to 10, तो उसी को बार बार iterate कर रहा था तो उसको उठा के बाहर कर दिया. That is also induction analysis. A variable is called an induction variable. Value is altered within the loop by loop invariant value. ठीक है. Strength reduction, there are expressions that consume some more CPU cycles, times and memory. These expressions can be replaced with a cheaper expression without compromising the execution time. For example बेटा, like your mathematical formulas, ठीक है, करने को तो आप math into its raised to its power भी कर सकते हो और math power x भी लिख सकते हो. ठीक है, तो वो क्या है आपके पास strength reduction है. ठीक है, for example somewhere it is 5 divided by 9, so you directly mention the result and that result is multiplied by some another value. So वो क्या टेक्निक है बेटा? ये strength reduction टेक्निक है जिसमें आपके पास क्या जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम होगा क्योंकि एक कंप्यूटेशन आपके कंप्यूटेशंस लेस करते जा रहे हो. ठीक है, आप कंप्यूटेशंस कम कर रहे हो. नेक्स्ट इज बेटा डेड कोड एलिमिनेशन. The code that is never executed or never will be reached is a dead code and that can be removed. ठीक है, कई बार इसके साथ हमें ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ती है जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी. एल्जेब्रा में एक पोर्शन ऐसा बनाना पड़ेगा. वो डेड कोड है, प्रोग्राम कभी वहां पे पहुंचेगा ही नहीं तो उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा. दैट डेड कोड कैन बी रिमूव. ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं. ठीक है, और आगे का कल कंटिन्यू करेंगे. बाय द मीन टाइम मैं आपको जो है आपके मार्क्स एक बार दिखा देता हूँ.
तो उनको मार्क्स दिखाता हूँ मैं। ये आपके मार्क्स है बेटा। देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। ये रहे बेटा। जो बेटा मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसकी शेयरिंग। ठीक है।
बेटा 507 गौतम, आयुष 1004, अभिषेक 1015, 1004, 1021, 1026, अक्षय, अमन, अंबिका, वन 1049 अंशुल, 1092, ट्रिपल 13 हर्ष, हिमांशु 1120, 1132 जितेश, 1138 करण, 1148 कुबेर, 1161 मोहम्मद कामरान, 1161, 1182, 1182 निखिल, निखिल शर्मा, 1183, 1185 निमेश, निमेश राज, 1185, 1188, 1203 प्रसन्नता, 1205 प्रतिभा, 1206 प्रयाग, 1219 राहुल, 1242 रोहित गुप्ता, 1260 सलोनी, 1304 सुधांशु, 1328 वैभव, 1346 विवेक, 1348 यश, यश मुत्रेजा, यशवंत 1349, 1350 येंद्र, 1354 राघव, राघव, दीपशिखा, साहिल सहगल 1377, चलो बेटा ठीक है, मार्क्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए, ठीक है, और बस तैयारी करो। आयुष सर लगा, हाँ जी सर वो FA3 का डिस्कस कर लो। हाँ FA3 बेटा आप लोगों का होगा नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में, ले ले ट्यूसडे को रख लेते हैं। मंडे रख लो सर। ट्यूसडे ठीक रहेगा यार, एक दिन और ले लो बीच में तैयारी के लिए। चलो ट्यूसडे भी ठीक है सर। हाँ मंडे को थोड़ा सा सिलेबस में करवा दूंगा, ट्यूसडे को कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस जो रहेगा आपका, एक मिनट, सिलेबस कभी शीट देखने पड़ेगी कहाँ है आपकी। सर आज वाली अटेंडेंस लाइव लगाई है चौक पैड पे? हाँ ठीक है सर। डेली ऐसे ही करता हूँ मैं, जब से आप लोगों के नाम चौक पैड पे आए तब से तो मैं सीधे वहीं पे लगाता हूँ। ओके सर। देखते हैं आप लोगों का। या तो सिर्फ आफ्टर ST2 का सिलेबस रख लेते हैं, कुछ ऐसे करेंगे। चलो कल मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, ठीक है।
कल आप लोगों को बता दूंगा सिलेबस कहाँ से कहाँ तक का है इसका। ठीक है सर। ठीक है, ओके बेटा।